जी, good afternoon, dear students. Today I will discuss the new topic. This is the introduction about the pure substance. This is the part of the unit 4. The subject name is Basic Mechanical Engineering and the semester is 1. This is the outline before starting of the main slide. Introduction about the pure substance, definition of the pure substance, phase changes of a pure substance, constant pressure steam generation process, critical point, triple point. What is the introduction about this type of the topic pure substance? This is a simple system. A simple system is one which the effects of the motion, viscosity, fluid shear, capillary, and the other parameter like that the stress in the external force fields are the absents. Homogeneous substance, a substance that has a uniform thermodynamic properties throughout, that is said to be homogeneous. तो इसको हम homogeneous का भी नाम देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट उस पे प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस विच इज द homogeneous and the invariable chemical composition and may exist in the more than one phases, that is called a pure substance. प्योर सब्सटेंस हम वो मानते हैं जो कि पूरी तरीके से होमोजीनियस फॉर्म में रहता है और केमिकल कंपोजिशन उसमें वेरिएबल फॉर्म में नहीं रहते हैं। एग्जांपल ऑफ द प्योर सब्सटेंस दैट इज द वाटर, वाटर विच इज द कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड द वेपर फेसेस, जो कि आपकी बनी रहती हैं होमोजेनियस कंपोजिशन में, दैट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। Mixture of the liquid water and the water vapor, it is another example for the pure substance. Carbon dioxide, nitrogen, mixture of the gases such as the air, as long as there is a no change of the phase, जहाँ पे phase change नहीं हो रही, ये सारी चीजें आपकी pure substance के रूप में count होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टीम जो बना रहे हैं वही प्योर सब्सटेंस रहे। प्योर सब्सटेंस आपका विदाउट चेंज ऑफ द फेज भी हो सकता है। So this is the definition of the pure substance. A pure substance is a system which is the chemical element must be combined chemically in the same way in the all parts of the system. This is called a pure substance. Homogeneous in the composition and the homogeneous in the chemical aggregation, it is also called a pure substance. Invariable in the chemical aggregation, it is also the called pure substance. The state of the chemical combination of the system does not change with the time, that is called the invariable in the chemical aggregations. This is the steam, which is also called a pure substance. This is CO2. This is the hydrogen plus oxygen. It is also called a hydrogen plus oxygen. It is not a pure substance. CO2 is a pure substance. ये जो आप देख रहे हैं तीनों चीजों में डिफरेंस ये है कि स्टीम जो है आपका प्योर सब्सटेंस है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्योर सब्सटेंस है, बट जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो इसके लिए हमें सेपरेशन चाहिए, तब जाके इसको हम प्योर सब्सटेंस बना सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस करने के लिए फेज चेंज होनी जरूरी नहीं है। दिस इज द फेज चेंज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस की किस तरीके से उसकी फेज चेंज हो रही है। लेट्स कंसीडर द रिजल्ट ऑफ द हीटिंग लिक्विड वाटर फ्रॉम द 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो घरों में पानी गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर और प्रेशर लगभग इतना ही रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, while keeping the pressure is constant. प्रेशर को हम कांस्टेंट करके पानी को गर्म करते हैं। We will follow the constant pressure process. वहां पे हम कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस को फॉलो करते हैं यदि प्लेट को ऊपर से ढक के रख दिया जाए। तो फर्स्ट प्लेस लिक्विड वाटर इन ए पिस्टन सिलेंडर devices where a fixed weight which is the placed on the piston to keep the pressure of the water constant at the all the times. ये आपका रहता है कि एक प्रकार से हम मान के चलते हैं कि किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पानी को रखा हुआ है और उसको गर्म किया जा रहा है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ water is heating at a domestic place where the plate is put up on the container system, then after then some time कि बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करने पे प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होने चालू हो जाएंगे। वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वर्क डन के लिए प्रेरित करते हैं उसको कि वहां पे कुछ वॉल्यूम, जब स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टीम का बढ़ता है तो उस वॉल्यूम के वो बढ़ने के कारण जो प्लेट है कंटेनर में से गिर के बाहर आ जाती है। तो एज द लिक्विड वाटर इज हीटेड व्हाइल द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट द फॉलोइंग इवेंट्स और ऑकर। यदि प्रेशर को कांस्टेंट करके पानी को गर्म किया जाए तो कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। पहली इवेंट प्रोसेस 1 to 2, दैट इज द टेम्परेचर एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम विल इंक्रीज from the compressed liquid or the subcooled liquid state 1 to the saturated liquid state 2। जैसे सपोज आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी था, उसको आपने गर्म करना चालू किया,
गैस पे रख के आपने उस पानी को गर्म किया, प्लेट ऊपर से आपने ढक के रख दी, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा। और वो थोड़े देर बाद आप देखेंगे जब कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वहां पे सेचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, मतलब बॉइलिंग की कंडीशन आ जाएगी। उस और बॉइलिंग की कंडीशन के कारण पानी जो है काफी तेज उबलना चालू हो जाएगा, और उस कारण से जो प्लेट पे है वो वेट बढ़ता चला जाएगा। इन द compressed liquid region, the properties of the liquid are approximately to the properties of the saturated liquid state at that temperature। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में सभी को पता है कि पानी उबलना चालू हो जाता है। तो पानी शुरुआत में यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर पे रखा हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। Process 2 to 3, at state 2, the liquid has reached the temperature at which it began to boil, called the saturation temperature, and is said to be exist as a saturated liquid। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी गर्म हो रहा है तो उसे हम saturation temperature का नाम देते हैं। Properties at that saturated liquid state are noted by the subscript by the letter F, and the V2 that is called the specific volume of the fluid। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि फ्लूइड के लिए यानी लिक्विड के लिए एफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रहता है उसको वी एफ का नाम देते हैं। तो दैट इज द वी फॉर द विक्ट्री एंड द एफ इज द फ्लूइड। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज बोथ द temperature and the pressure remaining the constant according to the international temperature scale, that is the 1990 ITS 90, वाटर बॉयल्स एट 99.975। आपको सभी को पता है पानी 99.97 यानी 99.97 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जो है उबलना चालू हो जाता है व्हेन द प्रेशर इज एट 1 एटमॉस्फेरिक। यदि प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक है। At stage 3, the liquid and the vapor phase are the equilibrium, and any point on the line between the state 2 and 3 has the same temperature and the pressure। तो वहां पे 3 स्टेट पे, जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे, कि लिक्विड और जो वेपर फेस है वो इक्विलिब्रियम में बनी रहती है। ये स्टेट 2 है जहां पे कि पानी का जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है, कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टेट 3 है जब आपका जो पानी का वहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन वहां पे फेज चेंज होनी चालू अभी नहीं हुई है। स्टेट 4 के केस में हम देखेंगे कि जो आपका लिक्विड सैचुरेट कंडीशन पे था वो फेज चेंज करना चालू कर दिया, मतलब उसमें लेटेंट हीट आनी स्टार्ट हो गई, जिसके कारण से वो आपका सैचुरेटेड लिक्विड से वेपर की फेज में जाना चालू हो गया, मतलब अब वो वेट स्टीम बननी चालू हो गई है। तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो प्रोसेस 3 to 4, एट स्टेट 4 द सैचुरेटेड वेपर एग्जिस्ट्स एंड द वेपराइजेशन व्हिच इज कंप्लीट। The subscript G will always denote a saturated vapor state, that is the V4 is equal to the Vg. The saturation temperature, which is the independent properties, the saturation pressure is the independent properties, and the saturation pressure is the pressure at which the phase change will occur for a given temperature। saturation pressure एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कि जो सैचुरेटेड लिक्विड है वो अपनी फेस को लूज करना स्टार्ट करता है, और वहां से फिर लिक्विड से सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन से हम वेपर की फेस में जाना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो स्टीम बननी स्टार्ट होती है, उस स्टीम का नाम वेट स्टीम होता है। In the saturation region, the temperature and the pressure are the dependent property. If one is known, then the other is automatically known। तो यहाँ पे यदि आपके पास एक चीज पता है तो दूसरी चीज को पता लगाना बहुत ही इजी तरीके में रहता है। और दीदी then move to the process 4 to 5, if the constant pressure heating is continued, the temperature will begin to the increase above the saturation temperature, which is called 100 degree centigrade in this example, and the volume will also increases। जो स्टीम बनने की प्रोसेस रहती है आफ्टर द 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है, and the state 5 is called the superheated state because T5 is greater than the saturation temperature for the pressure and the vapor is not about the condense। तो इस तरह की कंडीशन बनी रहती है कि आफ्टर द 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ना स्टार्ट होता है सुपर हीटिंग स्टेट में जाके। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो रहती हैं वाटर की वो सुपर हीटेड रीजन में फाइंड आउट की जाती हैं और उसे सुपर हीटेड स्टीम टेबल से पढ़ा जाता है। तो नॉर्मली प्रॉपर्टीज ऑफ जो प्योर सब्सटेंस है इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है
वो स्टीम टेबल से पढ़ी जाती हैं। और स्टीम टेबल बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक प्रेशर बेस पे होती है, एक टेम्परेचर बेस पे होती है। तो स्टीम टेबल नॉर्मली जो यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सैचुरेशन कंडीशन यूज करते हैं, लेकिन यदि अपने को सुपर हीट हो रही है प्रॉपर्टीज, यानी स्टीम की कंडीशन आफ्टर द ड्राई सैचुरेटेड, यदि वो सुपर हीट जा रही है तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि स्टेट 5 में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक है। तो कांस्टेंट प्रेशर स्टीम जनरेशन की प्रोसेस जो है वो एक डायग्राम से आपको देखने को मिलेगी, विच इज द थ्योरी which of the flowing the steam generation it is depicted is here constant pressure steam generation, it is represented in this diagram। जो डायग्राम में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि if the liquid is compressed from the 20 degree centigrade to 100 degree centigrade, तो compressed liquid which is the heated from the 20 degree centigrade to saturation condition, तो here the liquid is the boiling taking place। यहाँ पे लिक्विड का बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द 2 to 3 पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड मिक्सचर। यहाँ पे आपकी स्टीम प्लस वाटर दोनों मिक्सचर साथ में चलेंगे। 3 to 4 यहाँ पे आप जैसे आएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपको ड्राई स्टीम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हियर द स्टीम फेज विल बी चेंज एंड द वेट स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू द प्योरली ड्राई फॉर्म। यहाँ पे स्टीम आपको ड्राई के फॉर्म में मिलेगी, यहाँ पे स्टीम आपको वेट के फॉर्म में मिलेगी, जिसकी की ड्राइनेस लेस देन 1 होती है, या बोलना चाहिए 100% से कम होती है। तो यहाँ पे वेट स्टीम मिलेगी। और उसके बाद हम जब ड्राई स्टीम को फर्दर हीट सप्लाई करेंगे तो सुपर हीट वेपर मिलेगी, और सुपर हीट वेपर ये आपकी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मिल रही है। तो दिस इज कॉल्ड द constant pressure steam generation process where the temperature will increase, specific volume will increase, but the pressure remaining the constant, and the steam, there are the 3 types, wet, dry, and this is called the steam condition which is called superheated manner। तो superheated steam which is having the high heat content, उसमें जो heat content रहता है ज्यादा रहता है, और heat content होने की वजह से जो thermal efficiency रहती है वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए नॉर्मली सुपर हीट स्टीम का ही इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। तो नॉर्मली यदि आप घरों में भी देखे होंगे, यदि आप स्टीम लेते हैं तो वो ड्राई सैचुरेटेड से ऊपर वाली रहती है, ताकि आपको यदि कोई जुकाम वगैरह हुआ तो उससे रिलीफ मिल जाए। तो ये सारी चीजें वो फॉलो हम कांस्टेंट प्रेशर स्टीम जनरेशन प्रोसेस में करते हैं। So it should be noted that the point 2 and 3 are at the same boiling pointing temperature, and the pressure is also that at those conditions the liquid and the steam line are the equilibrium with the each other। उस condition पे जहाँ पे कि saturated mixture मिलता है वहाँ पे आपको liquid और जो steam की condition है वो saturated mixture की रहती है। Quality of steam refer to the fractions or the percentage of the gases steam in a wet steam mixture। जो क्वालिटी ऑफ स्टीम है वो आपकी चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच अमाउंट ऑफ द हीट विल बी एडेड, कितनी अमाउंट की हीट को ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। यदि हीट ज्यादा ऐड करेंगे तो वो हो सकता है सुपर हीट स्टीम आपको मिल जाए। तो ड्राई स्टीम एक ऐसी स्टीम जहां पे कि 100% ड्राइनेस रहती है, यानी बोलना चाहिए वहां पे मॉइस्चर नहीं रहता है, या बोलना चाहिए वाटर पार्टिकल नहीं रहता है। It contains no water, that is steam called a dry steam। At the top of the steam generator unit for the producing, that is for the saturated steam, there are the moisture separators used to remove the residual water droplets from the outgoing steam। Superheated steam जो रहती है dry steam को further यदि हम गर्म करते हैं at given the pressure condition that has been heated to a temperature higher than the boiling point of the water at that pressure condition, that steam is called the superheated steam। मतलब ड्राई स्टीम को यदि आपने फर्दर गर्म किया कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो ड्राई स्टीम सुपर हीट स्टीम में बदलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें हीट कंटेंट ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द डायग्राम वेयर द क्रिटिकल पॉइंट and the triple point will be shown clearly। because of the critical point it will be changed for the different condition। यदि प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक है तो ये रहेगा, 10 एटमॉस्फेरिक है तो ये रहे, फिर आपका और ज्यादा यदि प्रेशर आप बढ़ाते आएंगे 1 मेगा पास्कल है तो आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो चेंज होता चला जाएगा।
तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सैचुरेटेड लिक्विड जो है डायरेक्टली सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो हो जाती है। यदि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो रहेगी। और ये क्रिटिकल पॉइंट आप जो देख रहे हैं जहां पे कि आपको टेम्परेचर की वैल्यू 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रही है, वहां पे प्रेशर जो है यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर भी मिलता है। इस क्रिटिकल प्रेशर की जो वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ वॉल्यूम, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वॉल्यूम एंड द क्रिटिकल प्रेशर दैट इज कॉल्ड अ 22.06 मेगा पास्कल एट दिस कंडीशन। तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ के जितने भी पॉइंट है लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, और इसके ऊपर यदि आप चले जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड अपर क्रिटिकल पॉइंट। तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रेशर कंडीशन, कितने तरीके से प्रेशर वहां पे अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट इज डजंट मीनिंग कि उसका कोई मीनिंग निकलता है। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर यदि आप काम कर रहे हैं तो दैट इज द मच मोर मीनिंग इफेक्ट, कि वहां पे उसका मीनिंग जो है बहुत अच्छा निकलेगा कि आप क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर यदि वर्क कर रहे हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ द 25 मेगा पास्कल। और हाई प्रेशर बॉयलर जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं थर्मल पावर प्लांट में या इंडस्ट्रियल कंडीशन पे, वहां पे दिस इज द सुपीरियर कंडीशन एंड द वेयर इट विल बी यूज्ड फॉर द हाईएस्ट प्रेशर, कि जहां पे स्टीम जो है 250 बार पे बनाई जा रही है। 250 बार इट इज द टू मच प्रेशर। मैंने आपको बताया था दो तरह के बॉयलर होते हैं, एक लो प्रेशर बॉयलर होता है, एक हाई प्रेशर बॉयलर होता है। तो लो प्रेशर बॉयलर वो बॉयलर होता है जहां पे कि स्टीम 80 बार से नीचे बनाई जाती है, और हाई प्रेशर बॉयलर वो बॉयलर होता है जहां पे कि 80 बार के अबव में स्टीम बनाई जाती है। तो दिस इज द अनदर डायग्राम जहां पे कि आप देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट को शो किया गया है। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट इज द अनदर डायग्राम जो कि आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, CP is called a critical point, and that condition it is related with the temperature and the volume condition. Temperature is represented on this diagram. Here is the vertical axis and the volume is represented in the horizontal axis. So wet vapor it is zone is the in between of the compressed liquid and the critical isotherm. इनके बीच का जो जोन रहता है that is called a wet vapor. तो वेट वेपर का मतलब होता है यहाँ पे स्टीम और वाटर के पार्टिकल दोनों शामिल हैं। इन बिटवीन ऑफ दिस कर्व स्टीम और वाटर के पार्टिकल दोनों शामिल है। दिस इज कॉल्ड अ वेट वेपर रीजन। हियर दिस इज कॉल्ड अ कंप्रेस्ड लिक्विड एंड द सैचुरेटेड लिक्विड मींस द हियर ओनली द वाटर इज वाटर। यहाँ पे आपका जो है वाटर है, और उसको हम जब गर्म कर रहे हैं तो वो सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द वाटर कंडीशन जो कि आपको दिखाई दे रही है। एंड हियर दिस इज अ सुपरहीटेड जोन जहां पे कि सुपरहीटेड स्टीम आपको मिल रही है। तो सुपरहीटेड स्टीम विच इज कॉल्ड आफ्टर द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम विच इज द फर्दर हीटेड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्स से आपको पानी गर्म होता ही जा रहा है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो सुपरहीटेड जोन में चला जाएगा। नॉर्मली घरों में भी यही होता है कि गैस के ऊपर पानी चढ़ा के यदि हम भूल गए तो वो फिर सुपरहीटेड जोन में चला जाता है। तो सैचुरेटेड वेपर जो है वो आपका नॉर्मल कंडीशन है कि स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है, वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो कि आप घरों में जुकाम होने पे लेते हैं उस टाइम पे मदद करती है। तो दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड वेपर। If further heat supply it is taking place, much more heat content it will be included in the steam particle and it will be useful for the another purpose. इसका जो यूजफुल पर्पज है वो आपको दूसरे उसमें देखने को मिलता है, ताकि हम थर्मल इफिशिएंसी जो है प्लांट की या किसी भी एडिशनल डिवाइस जो कि यूज की जा रही है उस पर हम बढ़ा सकें। This is the saturation pressure versus the saturation temperature diagram where the critical point is depicted. This is another diagram in which the low vapor pressure. So evaporation is taking place after the water is heat treated by the some external sources. So this is the another diagram. सिमिलरली जैसे स्टीम बनाते हैं वैसे स्टीम को ठंडा भी किया जा सकता है। तो ये जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें कि स्टीम को ठंडा किया जा रहा है, कूलिंग किया जा रहा है। तो स्टार्ट ऑफ द कूलिंग, तो सुपर हीटिंग से डी सुपर हीटिंग वाली फेज आती है कि जब स्टीम को हमने ठंडा करना स्टार्ट हुआ तो ये वाली कंडीशन आएगी डी सुपर हीटिंग। मतलब डी सुपर हीटेड मतलब सुपर हीट से आप ड्राई में जाएंगे, ड्राई से फिर वेट में जाएंगे और वेट से फाइनली लिक्विड कंडीशन में आ जाएंगे। तो आपने देखा है कि स्टीम को यदि हम ठंडा करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पानी बन जाती है। तो दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस which are the taking place in the another application
So this is the another terms heat of vaporization. The amount of the heat will be required to convert liquid water completely into the vapor. That is the word is called the heat of vaporization. Saturation temperature and the saturation pressure. The temperature at which the evaporation is taking place, that is called the saturation temperature and the saturation pressure phase. Subcooled liquid, if the temperature of the liquid water on the cooling becomes the lower than the saturation temperature for the given pressure, it is called the subcooled liquid region. So there are the three conditions: heat of evaporation, saturation temperature and the pressure, and the subcooled. So subcooled is the condition where the temperature of the liquid water on the cooling becomes the lower than the saturation temperature. जहाँ पे saturation temperature को कम करके काम किया जाता है वो condition आपकी subcooled region कहलाती है. Compressed liquid, when the pressure on the liquid water which is the greater than the saturation pressure at a given temperature, that is the condition of the compressed liquid. The term compressed liquid or the subliquid which is used to the differentiate from the saturated liquid, जितने भी पॉइंट लिक्विड रीजन में इंडिकेट रहते हैं वो कंप्रेस्ड लिक्विड को शो करते हैं. Superheated temperature, when all the liquid has been evaporated completely and the heat is further added, the temperature of the vapor increases. कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को यदि आप गर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर आपको अचीव होगा वो सुपरहीटेड टेम्परेचर रहेगा. When the temperature increases above the saturation temperature, in this case 100 degree centigrade, the vapor is known as the superheated vapor. There is a rapid increase in the volume and the piston moves upwards. तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और उस स्पेसिफिक वॉल्यूम के बढ़ने से पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करता है. What is the meaning of the degree of superheat? The difference between the superheated temperature and the saturation temperature at the given pressure, that is called the degree of superheat. When the pressure is greater than the critical pressure, the liquid water is directly converted into the superheated steam. As there is a no definite point at which the liquid water change into the superheated steam, it is the generally called the liquid water when the temperature is less than the critical temperature, and the superheated steam when the temperature is above the critical temperature, that is called the condition of the superheated. So this is the another diagram in which the critical point and the liquid condition, steam condition is the clearly shown. The superheated vapor region after the formation of the dry saturated steam, it will be depicted from the this side of the condition. So this is the critical point where the saturated liquid phase which is merged into the saturated vapor region, and here the compressed liquid region where the water is heat treated by the some external sources. So there are the two condition pressure. P1 is equal to the 100 kilopascal and the P2 is the 1000 kilopascal. So if the pressure is increasing from the lowest side to the upper side, then steam formation is taking place at a very fast rate. तो स्टीम का जो फॉर्मेशन है वो आपको काफी फास्ट रेट से बढ़ता चला जाता है. तो दिस इज द कंडीशन कि वेयर द ऑल द सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर द कनेक्टेड वेपर लाइन व्हिच इज द स्टेबलाइज. तो ऑल द लाइन आर द क्लियरली शोन हियर. तो देयर this is the superheated vapor region, the region to the right of the saturated vapor line and the above the critical temperature which is called the superheated region, and the all the saturated liquid which are the here depicted saturated liquid state are the connected the saturated liquid line which is the stabilized here the where the water is heated by the some external sources. जब पानी को external source की वजह से गर्म किया जाता है तो इस तरह के temperatures और pressure की condition generate होती है. तो ये जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं, दिस इज द एट द प्रेशर ऑफ द P2 एंड दिस इज द प्रेशर हियर. दिस इज द प्रेशर P1 100 किलो पास्कल एट ए टेम्परेचर ऑफ द 99.61. तो रीजन बिटवीन द saturated liquid line and the saturated vapor line which is called by this term, that is called a saturated liquid vapor region. यहाँ का जो between area आप देख रहे हैं ये आपका saturated liquid vapor region कहलाता है, जहाँ पे कि स्टीम और वाटर पार्टिकल की दोनों की फेज शामिल रहती हैं. This is another diagram where the critical point it is shown and the different pressure temperature condition. यहाँ पे temperature condition को show किया गया है, जहाँ पे T2 temperature is the higher than the T1 and the T1 temperature which is the constant temperature, it is working where the steam formation is taking place.
The critical point of the properties of for the water condition, that is the, here it is showing the at temperature and the pressure above the critical point, the phase transition from the liquid to the vapor is no longer discrete. उसके बाद आप जो सोचें कि लिक्विड टू वेपर फेज चेंज हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, दैट इज शोइंग हियर क्रिटिकल प्रेशर 22.06 मेगापास्कल जो होता है, टेम्परेचर जो है 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो आपका 0.003106 मीटर क्यूब पर केजी रहता है। तो दिस इज द फेज चेंज कंडीशन वेयर इट इज द डिपिक्टेड लिक्विड इज heat treated by the some external sources by the different pressure condition। कि different pressure condition पे आप देख रहे हैं कि लिक्विड को गर्म करके वेपर की बनाई जा रही है। तो वेपर जब बन रहा है तो क्रिटिकल कंडीशन पे जो values रहती है, that is called the critical pressure and the critical temperature, and at this condition volume is also called a specific volume, it is denoted by the critical volume। This is the PT diagram, often called a phase diagram for the pure substance। So this is the triple point condition। यहाँ पे आपको ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन मिलेगी देखने को। तो ट्रिपल पॉइंट में आप देखेंगे कि जो लिक्विड फेज है इट इज हियर, वेपर फेज इज हियर, द सॉलिड फेज इज हियर। तो जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस केस में फ्यूजन कर्व काम आता है क्योंकि उसको मेल्टिंग करते हैं। और बोलना चाहिए जब लिक्विड से हम वेपर फेज में जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ वेपराइजेशन कर्व, और जब वेपर से लिक्विड कंडीशन पे आते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सबलिमेशन कर्व। तो जब तीनों पॉइंट एक जगह पे आके मिलते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यानी आपका सॉलिड से पहले हम लिक्विड में आए तो फ्यूजन कर्व हो गया, जब लिक्विड से वेपर की कंडीशन पे गए तो वेपराइजेशन कर्व हो गया, और जब वेपर से आप लिक्विड कंडीशन पे आ गए तो उसे हमने सबलिमेशन कर्व बोल दिया। और जब तीनों पॉइंट जहाँ पे कि लिक्विड, वेपर और सॉलिड फेज आके मिलते हैं उसको पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। तो ट्रिपल पॉइंट इज मेयरली द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द सबलिमेशंस एंड द वेपराइजेशन कर्व। तो ये आपकी तीन तरह की कंडीशन होती हैं। तो प्रोसेस 1 लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन, प्रोसेस 2 सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन, process 3 where the solid to vapor transition is taking place। So this is a total lecture. If you have any doubt, please ask me।